Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative lecture. So before starting today's lecture, I'll kindly request you all to subscribe to my channel for more knowledgeable content. So beta, in today's lecture, we'll be discussing the past paper question related to the physics section of Beria University and Air University का जो कंप्यूटर बेस्ड इंटरेस्ट टेस्ट है उसमें जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम डैट उससे सिमिलर क्वेश्चन भी हम ऐड आज के लेक्चर के अंदर मैंने ऐड किए हुए हैं उनको भी हम जो है इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे एंड हमारा प्रिपरेटरी सेशन for Air and Beria and for other various universities, they are going to start soon. So if any one of you is interested to join our preparatory sessions and ace their entrance test, inshallah, they can contact us on the given numbers. So now let us start today's lecture. So Bismillah Rahman Rahim, starting from question number 1, what is the dimensional formula for force? So force का जो है ना वो dimensional formula पूछा गया है. याद रखिएगा अगेन कि बेरिया के पेपर के अंदर छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस होती हैं. मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं और थ्योरेटिकल चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बेस कर रहे होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने आपसे पूछा है कि आपने डायमेंशन कैलकुलेट करनी है फोर्स की. सो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल टू M इंटू ए. सो M इज मैस, M की डायमेंशन तो कैपिटल M ही रहेगी. मैस की डायमेंशन, एक्सेलरेशन का यूनिट वी नो दैट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. सो रिमेंबर दिस मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. सो इसकी डायमेंशन लेंथ हो जाएगी एंड सेकंड इज द डायमेंशन ऑफ टाइम. सो इसकी डायमेंशन जो है ना वो t minus 2 हो जाएगी. सो MLT minus 2 is your dimension for force. So the force की dimension आ जाएगी that can be written as ML, that will be written as MLT minus 2. वैसे भी बेसिक डायमेंशन के साथ साथ आप फोर्स की डायमेंशन को भी याद रखें. दैट विल हेल्प यू आउट कि आप क्विकली जो है ना वो कैलकुलेशन जो है वो पेपर में कर सको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम नेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि पेपर के अंदर यूनिट्स को जो है ना वो पूछा जाता है. बेरिया के टेस्ट के अंदर अक्सर क्वेश्चंस के अंदर जो है वो यूनिट्स भी पूछे जाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस भी पूछी जाती हैं. तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द यूनिट्स. तो टेस्ला, ओम, हेनरी, वेबर. सो ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज ओम, राइट. Moving on to the next question. Next question is a transformer works on the principle of direct current, mutual induction, electrolysis, superconductivity. So the transformer works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction and ये mutual induction के ऊपर जो है उसका जो प्रिंसिपल है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये वर्क करता है. एंड म्यूचुअल इंडक्शन के इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हुए आपने ये बात याद रखनी है कि एक कॉइल के अंदर जब आप फ्लक्स को चेंज कर रहे होते हैं तो दूसरे कॉइल के अंदर फ्लक्स इंड्यूस हो रहा होता है, वोल्टेज एंड करंट इंड्यूस हो रही होती है. तो चेंज ऑफ फ्लक्स इन वन कॉइल इंड्यूसेस करंट और वोल्टेज इन अनदर कॉइल. दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन. So a transformer works on the principle of mutual induction. Next question is which force acts toward the center in uniform circular motion. So the centripetal force is responsible for keeping a body moving in a circular path and it pulls a body towards its center, or you can say that it adds towards the center of the circle. So centripetal force जो है ना it always adds towards the center of the circle. So centripetal force जो है वो center of the circle की तरफ जो है वो act करती है. Next question is what is the main cause of systematic errors in experiments. So systematic errors are caused due to the issues with your instrument or the issues with the device you are taking reading with. So remember कि systematic errors are caused due to the faulty apparatus or the faulty instruments. Next question is related to the simple harmonic motion. The acceleration of the object is directly proportional to. तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, द क्यूब ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. सो रिमेंबर कि जो डेफिनेशन है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इट स्टेट्स दैट द टाइप ऑफ अ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर प्रोपोर्शनल टू वन अनदर provided it is always directed towards the mean position. So remember it will always be directed towards the mean position. So acceleration and displacement are always proportional to one another and is always directed toward the mean position. So this is the definition of the SHM or the simple harmonic motion. The acceleration or displacement are proportional होंगे and second displacement will always be directed towards the mean position. So right answer here is option C. Which material is used to control fission reaction in a nuclear reactor?
So in a nuclear reactor, the control rods are made up of boron or cadmium. So boron is the right choice here. So boron के जो है वो control rods fission reaction के अंदर use होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ताकि आप जो सरप्लस न्यूट्रॉन्स जो है ना क्रिएट होते हैं, जो सरप्लस न्यूट्रॉन्स क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग द फिजन रिएक्शन, वो उनको एब्जॉर्ब कर लें एंड आप फिजन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें. Torque is defined as force per unit area, force per unit time, moment of force about an axis, rate of change of momentum. So the torque is basically is the moment of force, and mathematically it is written as F into moment arm. So the torque represents a moment of force around a fixed axis. So it is a moment of force about an axis. What is the relationship between current, voltage, and resistance in Ohm's law? So I is equals to V by R, I is equals to V into R, V is equals to I by R is equal to V into I. So the Ohm's law states that voltage and current are proportional to one another provided the resistance is kept constant. So mathematically it can be written as V is equals to IR. अब यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है कि जस्ट टू मेक कन्फ्यूजन उसने चीज़ों को रीअरेंज किया हुआ है. सो यू नीड नॉट टू वरी. आप यहाँ से आई की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सो दिस विल बिकम आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर. So the right option here is I is equals to V by R. Moving on to the next question. If a body of mass 5 kg is moved by a force of 20 newtons, what will be the acceleration produced? So we have a body whose mass is m and that is 5 kg and a force of 20 newton acts on it. So very easy numerical, but ये numerical मैंने इसलिए ऐड किया है कि जो डिफिकल्टी लेवल होता है न्यूमेरिकल्स का, वैसे तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस अगेन बता रहा हूँ बैरिया के सीबीटी के अंदर या एयर के सीबीटी के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशन आ जाए फिजिक्स के पोर्शन के अंदर तो बड़ी बेसिक्स ही होती है. जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है. आई बी यूजिंग द रिलेशनशिप एफ इज इक्वल टू एम ए. एफ की जगह पे आई बी प्लगिंग इन 20, मास इज 5, द एक्सेलरेशन कैलकुलेटेड विल बी 4 meters per second. So A की जो वैल्यू आ जाएगी that will be 4 meters per second square. So the right answer here is 4 meter per second square. If a car accelerates uniformly from rest to 30 meters per second in 5 seconds, what is its acceleration? Now there is a car जो कि accelerate कर रही है uniformly from rest to 30 meter per second. So VI here is 0 because rest से start लिया. VF here is 30 meters per second. So VF here is 30 meters per second and the time here is 5 seconds. So the time here is 5 seconds. What is its acceleration? So acceleration आपने कैलकुलेट करनी है. So A की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो मैंने फाइंड आउट करनी है. So we know that according to Newton's first equation of motion, Vf is equals to Vi plus A into T, or you can write A as Vf minus Vi divided by T. तो आप इस रिलेशनशिप को यूज कर लेंगे. Vf is 30, Vi is 0, time taken here is 5, so 30 by 5 will be 6 meters per second square. So the right answer here is 6 meters per second square. So this is why the right answer here is option B. Newton's first law is also known as, so न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. याद रखिएगा आप कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अनलेस अनटिल यू विल बी अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी, तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा. सो बॉडी जो है ना अपनी स्टेट को तभी चेंज करेगी जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी. एंड बॉडी अपनी चेंज इन स्टेट को रेजिस्ट करती है ड्यू टू अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज इनर्शिया, एंड इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास. So remember, the greater is the mass, the greater is the inertia. So the greater is the resistance provided by a body in its change in state. So law of acceleration, the Newton का second law है which states that F is equals to ma. वो ये कहता है कि आप फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो बॉडी एक्सेलरेट करती है इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड. एंड न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ना वो एक्शन एंड रिएक्शन के ऊपर बात करता है. वो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो तो ये स्टेट करता है कि एवरी बॉडी attracts another body with a force which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them. तो लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बता दिया, इनको एक्सप्लेन कर दिया ताकि अगर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए तो यू कैन इजीली सॉल्व इट अप. अगेन पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन को जो है ना वो ऐड किया गया. सिमिलर क्वेश्चन वाज सीन इन द past papers as well. A ball is thrown vertically upwards with velocity 20 meter per second. तो एक बॉल अपवर्ड जा रही है विद v that is 20 meters per second. How high does it go?
तो देखें जब एक बॉडी जो है ना मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी तो वहाँ पे जाके उसकी जो उसकी वी एफ है, ठीक है, वो वहाँ पे जाके जीरो हो जाएगी, फिर वापस दूसरी डायरेक्शन के अंदर जो है वो आना स्टार्ट कर देगा. सो आई विल बी यूजिंग द थर्ड इक्वेशन of motion. So 2as is equal to vf square minus vi square. So 2a here is your gravity and it is going upward. So the value of a will be taken as minus 10 rather than plus 10. So जब भी बॉडी ऊपर जा रही होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही होती है तो -10 लेते हैं, और जब नीचे आ रही होती है तो उसको आप +10 लेते हैं. ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास वी एफ स्केयर. सो वी एफ स्केयर की जो वैल्यू है वो 0 है, माइनस वी आई स्केयर. सो वी आई स्केयर की जो वैल्यू है दैट इज 20 का स्केयर हो जाएगा ये मेरे पास, राइट. सिंपली मैं कैलकुलेशन कर लूंगा यहाँ पे, तो -20 टाइम्स एस इज इक्वल टू -20 का स्केयर है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो 20 मीटर्स की हाइट अटेन करेगी ये जो बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड जो है ना वो थ्रो किया गया है. द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना वो कूलम होता है. तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. रिमेंबर ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. मैंने अभी ऑलरेडी एक एमसीक्यू में बताया आपको. वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज का यूनिट है ये मेरे पास. So in question number 15, what happens to resistance if the length of a wire is doubled? So we know that the resistance is can be written as R is equal to rho L by A, where L is the length of the conductor, A is the area of the conductor. तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस. लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी. तो अगर आपने वायर की लेंथ को डबल कर दिया है, सो रिमेंबर कि न्यू जो रेजिस्टेंस आ जाएगी ना आपके पास वो रो 2 टाइम्स एल बाई ए आ जाएगा, एंड दैट विल बी रिटन एज रो एल बाई ए इन टू 2. सो द न्यू रेजिस्टेंस विल be double of the original resistance. So R dash is equal to 2 times R. Which of the following waves is longitudinal waves? So longitudinal waves are the type of waves in which the particles vibrate in a direction parallel to the medium. So sound waves, remember, are longitudinal waves. The first law of thermodynamics is a statement of conservation of energy, entropy, heat transfer और burden. So the first law of thermodynamics जो है ना वो conservation of energy के साथ relate करता है, ठीक है. तो first law of thermodynamics जो है अगर उसकी बात की जाए तो वो आपको ये कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ हीट प्लस burden on the system. So it's the law of conservation of energy. The energy of a photon is given by the energy of a photon is given by which equation? E is equal to mc square. ये तो आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन है. E is equal to hf, एनर्जी ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट करता है, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, रिमेंबर, एंड f इज द फ्रीक्वेंसी. एंड ये दोनों जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मूवमेंट जो मूव कर रहा है पार्टिकल उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो द फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E इज इक्वल टू h इंटू f. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड f इज द फ्रीक्वेंसी. सो नाउ सम अदर क्वेश्चंस आई हैव एडेड अप इसी बेसिस के ऊपर. यहाँ तक कि तो जो क्वेश्चन थे ना आज के लेक्चर में वो थे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन थे. बट अगेन पास्ट पेपर्स का डेटा कंपाइल करना एंड ऑथेंटिक एंड रियल डाटा कंपाइल करना इज़ नॉट इजी. एंड वो डाटा जो है ना जो क्वेश्चन मैंने पिछले अभी आपको सॉल्व करवाए आज के लेक्चर में से पहले, दे वर फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. उनका डिफिकल्टी लेवल देखते हुए कुछ नए क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है जो कि सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के ऊपर हैं. तो अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है ना वो फर्दर जो है ना वो स्ट्रेंथन हो जाएगी इंशाल्लाह. अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग. सो जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन उसकी जीरो हो जाएगी. व्हाई? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन है. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपकी एक्सेलरेशन कहलाती है. तो यहाँ पे जो आपकी एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स. तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, सो आपके पास एक ग्राफ है जिसमें आप एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ले रहे हैं एंड वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास वेलोसिटी है. तो इसकी स्लोप आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगी? सो स्लोप जो है ना वो रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी बाय टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, एंड वेलोसिटी बाय टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. The rate of change of momentum of a body is equal to work done, force, impulse or energy. So the rate of change of momentum is
equal to the force. It is written as F is equal to mvf minus mvi divided by t. So this is equal to the force, whereas जो प्रोडक्ट है ना F इंटू टी का, F इंटू टी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इम्पल्स कहलाता है. सो impulse भी मैंने explain कर दिया just to clear the doubts. A projectile follows a parabolic path due to constant horizontal velocity, constant vertical acceleration, both A and B. So yes, both A and B is the right answer because a projectile follows a parabolic path and it's a two-dimensional motion and horizontal velocity का भी factor होता है और उसके अंदर जो है ना vertical acceleration का भी factor जो है वो present होता है. अब 5 kg object is moving with a velocity of 10 meters per second. Again को बहुत ज़्यादा difficult न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक से जो है ना वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती है और यहाँ पे भी ऐसा ही है. सिमिलर क्वेश्चन को सिमिलर पैटर्न के ऊपर बनाया गया. मोमेंटम आपने कैलकुलेट करना है. सो मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या होता है, मैस इनटू वेलोसिटी होता है. वेलोसिटी 10 है, मैस आपके पास 5 है, 5 एंड सिंपली आंसर आपके पास जो है ना 50 kg मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा. अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? The velocity is constant, the acceleration is zero, the net force is zero, the centripetal force is acting towards the center. So the centripetal force always act towards the center of the circle. So the right answer here is option D. Work done in lifting a body against gravity depends upon. So the work done in lifting a body against gravity depends upon displacement, mass of the body, both A and B. So yes, it depends upon both A and B. It depends upon कि आप कितना ज़्यादा डिस्टेंस उसके ऊपर लेके जाओगे एंड सेकेंडली बॉडी का मास कितना है. सो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. सो बेसिकली वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल. तो अगर आप ये देखो कि इफ अ बॉडी इज लिफ्टेड अप तो जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच. एम मैस है, जी ग्रेविटी है और एच आपके पास हाइट है. सो एनर्जी एंड वर्क आर इंटरचेंजेबल. तो यही चीज आपके पास वर्क है. सो एम जी एच आ जाएगा. सो बोथ ए एंड बी. इफ अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड. अगेन रिलेट करता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इनवर्ड. तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. In an elastic collision which the following is conserved: momentum, kinetic energy, both A and B. So elastic collision is a type of a collision in which the momentum as well as the kinetic energy is conserved. So the right answer is option C. By the way, this is a repeated question. So ऐसा question भी past paper के अंदर आता रहा है. The escape velocity from the earth surface is approximately 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. अब इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ऐड किया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जिसके अंदर रोड लर्निंग थोड़ी सी ऐड कर रही होती है. तो फिजिक्स के अंदर समटाइम्स ऐसी चीज भी आ जाती है जो नॉलेज बेस्ड होती है. वैसे तो फिजिक्स नॉलेज बेस्ड ही सब्जेक्ट है आपका, बट इसको ये एक ऐसी वैल्यू कि जिसको आपको शायद जो है ना वो याद रखना पड़ेगा, आपको रूट लर्न करना पड़ेगा. तो ये आपने याद रखना है कि इसके वेलोसिटी जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है. थर्मोडायनामिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स के अब कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं. सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स. तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो प्रेशर का है वो पास्कल है. देखिए प्रेशर इज रिटन एज फोर्स पर एरिया पर यूनिट एरिया. तो फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन एंड एरिया का जो यूनिट होगा दैट इज मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिस यूनिट इज नोन एज पास्कल, राइट. तो इसको आप जब पास्कल्स कहते हो. मैं इसकी डायमेंशन भी करवा देता हूँ क्योंकि ये प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर आता रहा है. सो फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी mlt -2 एंड एरिया की डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर. सो एल के साथ एल कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम ml -1 t⁻². Right, so moving on to the next question, the first law of thermodynamics, the restatement of law of conservation of energy. इसको मैंने ऑलरेडी जो है वो पहले भी सॉल्व करवा दिया आज के लेक्चर में. विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है. इडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट या सेम प्रेशर के ऊपर होता है. आइसोकोरिक सेम वॉल्यूम के ऊपर होगा आपके पास, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होगा. सो ये आइसोकोरिक आ गया. एंड इडियाबैटिक चेंज ऐसा चेंज होता है कि जिन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, राइट. Okay, so moving on to question number 14. When the temperature of a gas increases, molecules move slower, faster, remain at constant speed, change into solid state. देखें, जब भी आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो फास्ट हो जाएगी. मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे इंशाल्लाह. द डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर इन अ लिक्विड इज कॉल्ड. तो जो डिवाइस जो कि प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होती है, इस डिवाइस को आप हाइड्रोमीटर तो वाटर लेवल के लिए यूज होता है, वाटर की डेंसिटी के लिए होता है.
ठीक है। बैरोमीटर जो है वो भी प्रेशर के लिए यूज होता है, एंड मैनोमीटर जो है ना वो स्पेसिफिकली प्रेशर इन लिक्विड्स के लिए यूज होता है। जो डिवाइस है जो कि प्रेशर इन लिक्विड्स को मॉनिटर करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज होती है। थर्मोमीटर भी ऑल नो डैट के टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। फिर देन नाउ सम क्वेश्चन रिलेटेड टू वेव्स, साउंड एंड ऑप्टिक्स का चैप्टर है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टील है। देखें, सॉलिड के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा क्लोजर होते हैं, तो ज़्यादा जब क्लोजर मॉलिक्यूल्स हैं तो जो साउंड एनर्जी है वो ज़्यादा क्विकली जो है वो उसके अंदर फ्लो करेगी। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन द सॉलिड, ठीक है, एंड मीडियोकर इन द लिक्विड्स एंड इज लोवेस्ट इन द गैसेस। तो गैसेस के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सबसे कम होती है, यहाँ पे मीडियोकर होती है, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। राइट जी। तो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? जाउल है, हर्ट्ज है, न्यूटन है, पास्कल है। तो यूनिट जो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज, राइट। एंड हर्ट्ज इज इक्वल टू मीटर इनवर्स। वाई? बिकॉज देखें, सॉरी, सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेकंड इन -1 के इक्वल होती है, जो कि हर्ट्ज के इक्वल है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैंने पहले भी आपको बताया है, पास्ट पेपर का भी क्वेश्चन रहा है कि वहां पे भी एक क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ वेव्स गिवन थी, डिफरेंट वेव्स गिवन थी, और पूछा गया था कि इनमें से लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव को आप कहते हैं कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मीडियम के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। सो मीडियम के पैरेलल जो है वो वेव्स ट्रैवल करती हैं पैरेलल टू द मीडियम। सो ऐसी वेव्स को आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हो। एंड जिसमें वेव्स जो है ना परपेंडिकुलर टू द मीडियम प्रोपोगेट करती हैं, साउंड वेव, कोई भी वेव, साउंड वेव तो नहीं कहेंगे, जब वेव्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द मीडियम प्रोपोगेट करती हैं तो ऐसी वेव्स को आप ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, राइट। सो ऐसी वेव्स में वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो साउंड वेव्स दे आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। A concave mirror produces a real image when the object is placed at the focus, between the focus and the beyond the center of curvature. Beyond the, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ा हुआ होगा आपका, ठीक है, तो मिरर जो है वो रियल इमेज बनाएगा, और ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes from one medium to another medium is known as refraction. So bending of wave, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर होती है तो अपना पाथ भी बेंड करती है, प्लस जो उसकी स्पीड है वो भी चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी, अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी। तो स्पीड एंड पैथ बोथ आर चेंज वेन एवर देर इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में तो क्या है कि इंसिडेंट वेव आती है, टकरा के रिफ्लेक्टेड वेव वापस सेम मीडियम में चली जाती है, तो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सिस्टम एंड नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज है, तो सिस्टम एंड नेचुरल यूनिट ऑफ जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है? कूलम है। तो इसको आप जो है वो कूलम का, कूलम है इसका, एम्पेयर जो है वो करंट का है, न्यूटन जो है वो हमारे पास किसका है? न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। ओम्स लॉ इज गिवन बाय, अगेन पास्ट पेपर की बेसिस के ऊपर क्योंकि ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, तो वहाँ पे ओम्स लॉ को करंट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन थी, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पे V इज इक्वल टू IR की फॉर्म में। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? फैरेड है, ओम है, वॉट है, कूलम है। तो जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज ओम। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज जीरो, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। सो इनसाइड अ सोलेनोइड, कॉइल की जो इंटरनल साइड होती है वहां पे हमेशा आप याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है एंड वो कांस्टेंट होती है। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड है, और इसी की स्टेटमेंट को ही जो है वो चेंज किया गया और दोबारा चीज़ों को यहाँ पे पूछा गया। मैं ऑलरेडी आज के लेक्चर में ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर। अब आप एक फ्लो देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि क्या हुआ कि बीच में न्यूमेरिकल चीजें आई, बट मैं अगेन दोबारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा चला गया, कीपिंग इन व्यू जो पास्ट पेपर्स या जो पास्ट, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जब स्प्रिंग 2025 का जो रिसेंट सेशन गुजरा है या फॉल 2024 का जो लास्ट ईयर का सेशन गुजरा है उसकी बेसिस के ऊपर डिफिकल्टी लेवल को रखा गया है, ताकि ये स्पेसिफिकली एंड ओरिएंटेड जो है ना, या फोकस जो प्रिपरेशन है फॉर बेरिया का, एयर का जो CBT है उसके हवाले से हो जाए, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्मॉलेस्ट मास? सो स्मॉलेस्ट मास इसमें से किसका है? इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो स्मॉल होता है। अच्छा, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एंटी प्रोटॉन है। एंटी प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में डिफरेंस है, ऑल्दो चार्जेस दोनों के ऑपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन का इसमें से जो मास है वो सबसे ज्यादा कम है, न्यूट्रॉन हैवी होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, वो भी ज्यादा, उनका मास जो है वो ज्यादा होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन, आइंस्टाइन, मैक्सवेल, बोर। सो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ठीक है, दैट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन, राइट।
So the energy of a photon is given by, so the energy of a photon is given by E is equal to HF. ये भी ऑलरेडी आज के लेक्चर में पहले से सिमिलर एक जो है वो क्वेश्चन आ चुका है. एक्सरेज आर प्रोड्यूस बाय, एक्सरेज कब प्रोड्यूस होते हैं? जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक मेटल हो एंड एक आपके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसको हिट करते हैं, एक्सलेटरिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसको हिट करते हैं मेटल टारगेट को, तो जो इसमें से रेज रिलीज होती हैं दे आर नोन एज एक्सरे. सो वो फर्दर मोर इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करते हैं एंड वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नोन एज एक्सरेज. हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाफ लाइफ क्या होता है? वो टाइम होता है कि जब रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है चीज़ों का, सो रेडिएशन जो है ना वो इमिट हो रही होती हैं एंड रेडियो एक्टिव डिके होता है. तो आपके पास क्या होगा कि रेडियो एक्टिव डिके होने से या रेडिएशन के इमिट होने से आपका जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो जब रेडिएशन में कन्वर्ट होते जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो है रिड्यूस होते हैं, तो कितने टाइम में नंबर ऑफ एटम जो है ना वन हाफ रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे, उस टाइम को आप हाफ लाइफ कहते हो. यानी अगर शुरू में आपके पास 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट है तो कितने टाइम के बाद वो 50 ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट ओवर हो जाएगा, उस टाइम को आप हाफ लाइफ कहोगे. सो एक हाफ लाइफ के बाद हाफ रह जाते हैं, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 1/2 का पावर 2 रह जाते हैं, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 1/2 की पावर 3 रह जाते हैं. तो एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो 50% रह जाएंगे, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो 25% रह जाएंगे, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो उसका भी आपके पास जो है वो 12.5% रह जाएंगे. तो इस तरह के नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना वो डिके करते हैं. तो हाफ ऑफ इट्स न्यूक्लियर जितने टाइम में डिके कर लेंगे उसको आप जो है ना वो क्या कहोगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहोगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड सर्किट्स के से रिलेटेड क्वेश्चन है. डायरेक्शन दैट यूज्ड इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. यस, तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किसी भी कंडक्टर में बताने के लिए यूज होता है. सिस्टम में नेचुरल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस पूछा गया. सिस्टम में नेचुरल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो फैराड होता है. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. Q इज इक्वल टू सी वी है. तो कैपेसिटेंस क्या होती है? चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर है. सो C इज इक्वल टू Q बाई V आ जाएगा. अगर 1 कूलम का चार्ज आपके कैपेसिटर की प्लेट्स कैरी करें एंड प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का हो, तो आप ये कहेंगे कि जो वहाँ पे कैपेसिटेंस है ना वो 1 फैराड की कैपेसिटेंस है. ठीक है. Electric field is strongest where the electric field lines are closest together, farthest apart, parallel to each other. So electric field जो है ना वो strongest होती है जहाँ पे electric field lines क्या हैं? Where they are closer together. The unit of magnetic flux is, तो magnetic flux का जो unit है वो Tesla है. ठीक है. So magnetic flux का unit is Tesla, right? So moving on to the next question. Moving charge produces only an electric field, only a magnetic field. Both electric and magnetic fields, neither electric nor magnetic field. So moving charge, जब भी चार्ज मूव करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. देखिए याद रखिए, अगर स्टैटिक चार्ज है ना आपके पास, तो स्टैटिक चार्ज की सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अगर आपके पास चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी. जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करती है. सो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके पास होंगी. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है. सो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, राइट. तो देखें ना, रेजिस्टेंस जो है ना डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए. सो रो इज द रेजिस्टिविटी, द मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एल आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए आपका एरिया ऑफ द कंडक्टर है. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल, द इंडक्टेंस विल बी रिमेन सेम, विल बी डबल्ड, विल बी हाफ्ड, विल बी क्वाड्रुपल्ड. देखें, जब भी आप नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल को डबल करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर आपको कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल्ड, द इंडक्टेंस विल बी. सो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल को डबल करते हैं तो आपके इंडक्टेंस के ऊपर क्या असर होगा? देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो उसके अंदर क्या होगा? आपके पास एन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा. तो नेगेटिव साइन जो लेंजेस लॉ की वजह से होता है इसके अंदर. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से डबल हो जाता, लेकिन हमसे इंडक्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है. तो इंडक्टेंस जो है ना उसका जो रिलेशनशिप है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट. म्यू नॉट आपकी परमेबिलिटी है, एन स्क्वायर इंटू एरिया डिवाइडेड बाय आपके पास जो करंट होता है आई होता है. सो नंबर ऑफ टर्न्स के स्केयर के ये प्रोपोर्शनल है. सो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करोगे ना बेटा, 2 टाइम्स करोगे, तो उसको डबल करने से आपका जो इंडक्टेंस है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, वो क्वाड्रोपल हो जाएगी. सो क्वाड्रोपल का मीनिंग क्या होता है कि 4 टाइम्स जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. When a dielectric is inserted between the plates of a capacitor, its capacitance decreases, increases, remains unchanged, becomes zero. So the capacitance is given by A epsilon naught epsilon R divided by D. So अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो साथ में एप्सिलॉन R भी आ जाएगा. अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया, सिर्फ वैक्यूम है between the plates of a capacitor, तो the capacitance is given by area into epsilon naught divided by D. लेकिन ये आपकी relative permittivity ऐड ऑन हो जाती है जब आप उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक
इंसर्ट करते हो। सो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी परमेबिलिटी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो जब उसका मल्टीपल बन के आएगी तो कैपेसिटेंस जो है ना वो आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो कैपेसिटेंस जो है ना वो आपके पास इंक्रीज हो जाती है। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द पावर फैक्टर इज गिवन बाय, सो पावर फैक्टर जो है वो कॉज ऑफ थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। P इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉज ऑफ एंगल होता है। तो cos theta is the power factor here. 100 watt bulb operates at 220 volt. The current through the bulb is, तो पावर गिवन है आपके पास, देखें पावर जो है ना मैंने फॉर्मूला वैसे राइट डाउन कर दिया है। पावर के इलेक्ट्रिक पावर कैन बी गिवन एट v into I, it can also be written as I square R, it can also be written as v square by R, रिमेंबर। सो P इज इक्वल टू वी आई को आप यूज कर लें। पावर आपके पास 100 वॉट्स है, वोल्टेज आपके पास 220 है, एंड आपके पास जो करंट है वो I है। जीरो जीरो के साथ कैंसिल कर दीजिएगा आप, 10 को आप डिवाइड कर लेना 22 से, तो 0.45 आपके पास जो है ना एम्पेयर्स वो आंसर आ जाएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं अब हम। विच पार्टिकल हैज नो चार्ज, किस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं होता। ठीक है जी। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर जो होता है वो दैट इज आइदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन्स, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही आपके, जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही आपके पास एक एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो आइदर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस, मैथ नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर में साथ आपके पास याद रखिएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं। सो न्यूट्रॉन्स को भी बीच में ऐड कर लिया जाता है। The energy of an electron in an atom is quantized, continuous, always positive, independent of its orbit. So the energy of an electron in an atom is क्वांटाइज होती है एनर्जी, ठीक है। उसकी जो वैल्यू होती है वो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, क्वांटाइज वैल्यू जो है वो उसकी होती है। मैंने इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर एनर्जी लेवल, तो डेफिनेटली वो एनर्जी इमिट करेगा। जब वो हाई से लो, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो याद रखिएगा कि एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा इन दैट केस। तो इन दिस केस तो एनर्जी जो आपके पास इमिट होगी। A nuclear fission reaction releases energy because mass is converted into energy. Yes, यही बात करेक्ट है। देखिए फिजन का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या था कि दे द साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट द डड वाज कि उन्हें एक न्यूट्रॉन लिया था और एक यूरेनियम का एटम लिया था, एंड दे वर थिंकिंग कि न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल यूरेनियम का साइज बहुत बड़ा है, तो होगा ये कि वो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेगा, बल्कि ऐसा नहीं हुआ था। इट स्प्लिटेड अप इनटू टू स्मॉलर एटम्स along with release of lot of energy in the form of heat, and 3 further न्यूट्रॉन जो है ना वो emit हो गए थे, एंड ये कंट्रोल या फिजन रिएक्शन की तरफ चला गया था। एक चेन फिजन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया था। सो मैथ जो है, ये जो मैथ था यहाँ पे इस रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का, वो कन्वर्ट हुआ इनटू एनर्जी। सो इज इक्वल टू एम सी स्केयर, एनर्जी एंड मैथ एंड इंटरचेंजेबल, आइंस्टाइन मैथ एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है। द आइसोटोप यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ फ्यूल इज यूरेनियम 235। ये मैंने आपको इस के अंदर भी ऐड ऑन कर दिया है, ये जो एमसीक्यू नंबर 45 था उसके अंदर भी बता दिया है। द चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, एंड 2+2 का उनके ऊपर जो है वो चार्ज होता है। सो He2 पॉजिटिव, दीज आर नोन एज योर अल्फा पार्टिकल्स, दीज आर नोन एज योर अल्फा पार्टिकल्स। तो ये जो है ना आपके पास ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कहलाएंगे, ठीक है जी। तो अल्फा पार्टिकल आ जाएंगे। विच रेडिएशन है द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, सो गैमा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, अल्फा की लीस्ट होती है, और अल्फा पे याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो मीडियोकर होती है। अल्फा की तो खैर बहुत ज़्यादा लेस है पेनिट्रेटिंग पावर, बीटा की अल्फा से ज़्यादा है, लेकिन गैमा रेज जो है दे कैन इवन पास थ्रू, दे कैन इवन पेनिट्रेट थ्रू अ थिक वॉल। सो गैमा रेडिएशन दे कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती हैं, बट इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इज द मोस्ट। द हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज 10 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स व्हाट फ्रैक्शन रिमेन। तो अगर हाफ लाइफ उसकी 10 मिनट्स है, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर 30 मिनट्स उसकी 3 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी। सो 1/2 की होल पावर द नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो गुजरी हैं। सो 3 हाफ लाइफ जब उसकी गुजरेंगी तो 1/8 पार्टिकल जो है ना वो आपके पास लेफ्ट ओवर हो जाएगा, रिमेन हो जाएगा। द बोहर मॉडल एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। यस, जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन ऐड किए। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर अप्रोक्सीमेटली, जो एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर के मटेरियल के अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँ कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपके पास पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है इन द केस ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के अगर मटेरियल से आपके पास एक पीएन जंक्शन बनता है
तो याद रखिएगा कि वहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है वो 0.7 वोल्ट्स का होता है। सो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर। देन जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट्स का होता है। तो ये दोनों बातें भी पेपर रेलिवेंट है, स्पेशली टू द बैरियर एंड एयर का जो सीबीडी टेस्ट है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फाउंड बाय डोपिंग विद फास्फोरस, बोरॉन, सिलिकॉन। तो पी टाइप मटेरियल के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो इसके अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी वो होती है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिलिकॉन को आप जो है ना डोप्ड करते हो विद बोरॉन, क्योंकि बोरॉन के आखिरी शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर देयर आर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से आपके पास हमेशा पी टाइप मटेरियल प्रोड्यूस होगा और आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे, क्योंकि पास्ट पेपर रेलिवेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वो होती है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल बनता है वो एन टाइप कहलाएगा, ठीक है। और डायोड कैसे बनता है, एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को आप कंबाइन करते हो तो एक डायोड बन जाता है। एंड ट्रांजिस्टर जो है ना पीएनपी या एनपीएन डिपेंड करता है, और उसमें 3 मटेरियल्स होते हैं, 2p1n और 2n एंड 1p भी हो सकता है। लॉजिक गेट एक एमसीक्यू इसमें से मिस हो गया। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, स्विच, ऑल ऑफ दिस। तो ट्रांजिस्टर जो है ना वो स्विचिंग का काम भी करता है, एम्पलीफिकेशन का काम भी करता है, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज एन ऑसिलेटर इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। So all of these इसका आंसर है। The logic gate that gives high output only when both the inputs are high is known as AND gate। ये तो आपको पता ही है कि एंड गेट के अंदर आपके पास क्या होगा कि जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं तो आउटपुट भी आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो 0 1 है, 0 1 है, फिर 2 टाइम्स 0 है, फिर 2 टाइम्स 1 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कि 1 इंटू 1 आप करोगे तो 1 आएगा ये एंड गेट के अंदर, ए डॉट बी, ओनली इन दैट केस 1 आएगा। अगर एक भी वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट आपके पास 0 हो जाएगी। सो एंड गेट गिव्स, लॉजिक गेट है जो कि हाई आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट जो होती हैं वो 1 होती हैं। सो दिस इज एंड गेट। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ अगेन तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अच्छा, बाय द वे दिस इज ऑल्सो अ पास्ट पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो रेजिस्टिविटी को अगर आप देखोगे तो दैट कैन बी रिटन एज रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओम है, एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है, लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है, लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है। तो मीटर के साथ आप मीटर स्क्वायर को क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर देंगे, तो यू विल बी लेफ्ट विद ओम इनटू मीटर। सो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द करंट फ्लोज व्हेन इट इज रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। सो फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड जो है वो कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस के अंदर कंडक्ट नहीं करता है। सिंपल डायोड की बात हो रही है। अब कुछ है मैंने मिक्स क्वेश्चन जो है ना एक फाइनल सेट में ऐड किए हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी और इस तरह की चीजें भी पेपर के अंदर होती हैं। तो सिस्टम यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिग्री इज रेडियन पर सेकंड, ठीक है। सो इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो ये बात भी आपने, इसको भी देखना है आपने। तो रेडियन पर सेकंड आपका एंगुलर वेलोसिटी का जो है ना वो आपके पास यूनिट है। So next question is the bending of wave around an obstacle is called. So the phenomena in which the waves bend around an obstacle through the corner is known as diffraction. So इस phenomena को आप जब diffraction कहते हो. The time period of a simple pendulum is given by. So the time period of a simple pendulum is given by 2 pi under root L by G, and the time period in the case of a mass attached to a spring system is given by 2 pi under root M by K. तो जो अभी रिसेंट पेपर्स हुए हैं ना स्प्रिंग 2025 के एंड फॉल 2024 के, उसके अंदर ना सिर्फ ये कि सिंपल पेंडुलम या मैश अटैच्ड हुआ स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड को पूछा गया था, बल्कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे कि अगर लेंथ को इतना टाइम इंक्रीज कर देंगे तो टाइम पीरियड पे क्या असर होगा, अगर मैश को इतना टाइम इंक्रीज कर देंगे तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर भी इंक्लूडेड है। द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज, तो द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। तो द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी आपसे पूछा गया, तो सन के ऊपर देर आर हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेसेस गोइंग ऑन, जिससे वो एनर्जी रिलीज होती है लाइट की फॉर्म में, जो है वो अर्थ तक जो है वो आती है। एंड सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन प्लानट अर्थ, राइट। जो सनलाइट अगर नहीं होगी तो ना तो टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है, ना तो चीज़ें ग्रो हो सकती हैं, ना ही लाइफ का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल है। द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, मैस का और उनके साइज का डिफरेंस तो है, बट नंबर ऑफ चार्ज उनका सेम है बट ऑपोजिट नेचर का होता है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1 प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होगा। अ वेव इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसफर वेव, स्टेशनरी वेव, मैकेनिकल वेव्स। अगेन पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ये। सो ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ये ऑलरेडी भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। फिर जैसे सिर्फ 63 क्वेश्चन नहीं थे, अगर आप ये देखेंगे तो पहले मैंने जो इसका स्टार्ट में जो आपको एक सेट सॉल्व करवाया है वो फ्रॉम द पास्ट
पेपर्स के क्वेश्चन थे और उसके बाद जो है ना क्वेश्चन उसी से रिलेटेड मैंने फर्दर भी ऐड किए हैं। तो अब फर्दर ऑन हमारा फेज 1 एंड फेज 2 के जो फॉल 2025 के एडमिशन है उनका सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप में से कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो ऑन द गिवन नंबर दे कैन कॉन्टैक्ट अस। काइंडली डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।